So in last class, we studied about the several steps involved in canning operation. So in canning operation, uh, in last class, we covered the selection of raw materials. So basically it depends upon the type of species or and also the type of end product user. किस तरह का हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो इस चीज पे डिपेंड करता है. ड्रेसिंग स्टाइल, देन सिलेक्शन वी कवर्ड, dressing style, processing we covered. Then after that, we have to do treatment. All this dress material, we have to apply a treatment. So we are doing a salting, we are doing a blanching, either cold blanch or hot blanch. Then we are also doing a pre-cooking. So these are the some treatment steps that we are applying to a dressed fish. Then after all these treatments, what we have to do, we have to fill the blanched material or pre-cooked material into a can, empty can we have to fill. So after filling, we have to use a media as a filling mediums to enhance the heat transfer, during heat processing or retorting. So filling media, we are using oil, vegetable oils, then we are using a sauce, then we are also using a brine and other curry materials also we are using as a filling media. After filling, what we are doing, we are clinching the can lid. Suppose can body is there that has been filled with a dressed meat, then filling medium, then we are clinching. Clinching is a step where we are clinching the lid, can lid over the can body. Then after clinching, what we are doing? We are doing a can exhausting. This is the most important steps that we are following in the canning operation. So exhausting, again, there is a different way or different kinds or different types of exhausting. Heat exhausting is there, then heat exhausting is there, mechanical exhausting is there, steam injection method of exhausting is there. So out of this, all these three methods of exhausting, heat exhausting is the most commonly used and also is the best way of exhausting. That's why we are applying a heat exhausting method. After exhausting, what we have to do? We have to emboss. Embossing, we are doing a can coding. Can coding, that means we are giving a code where the manufacturing date will be there, then batch operation on which date this product has been prepared. So batching will be there, coding will be there, then this uh, generally this coding we are representing in the form of letter and figure. So that is done by the embossing machine. वो कैन के ऊपर में हम उसको emboss करते हैं. So all these steps, right from the selection of raw material to the exhausting and coding, we have covered in the last class. Now we will cover the next step is the most important step is the can seaming. So this step is most important because uh, it's it helps in getting a airtight seal or hermetic sealing we are doing. So this is because of the shimming. So in seaming, what we are doing, we are joining the can lid to the can body. Suppose can container is there, we have clinched with a lid. So this lid cover ऊपर का जो can का जो cover है उसको can body से हम joining करते हैं. So joining operation is mainly with the help of machine. We are performing the can seaming. So that machine is called as double seaming machine, by which we will perform the canning seaming. So this can seaming we have to do immediately after completion of exhausting step. So after exhausting, immediately we have to seal the can with the help of double seaming machine. Objective of this can seaming is to get
the airtight seal between the can lid and can body or can cover or can body. So जब हम can cover को can lid को can body से join कर देंगे तो वो हमारा airtight seal perform करता है. We will get the airtight seal or hermetic sealing with the help of this double seaming machine. So a good quality tin plate, adequate sealing compound and efficient can closing machine. All these combine to produce a strong and good quality hermetic double seal. What are the factors which affects the good quality? Means strong hermetic double seam is that first is the good quality tin plate, second is adequate sealing compound. So sealing compound we are using a rubber compound between the can lid and can body, and also the efficient double seaming machine. So all these three parameters will combine and that will influence to get a strong airtight or hermetic double seam. Okay, then sealed can are also subjected to pressure testing. Why we are performing pressure testing? Just to check whether any leak is there or not. If any leak is there in the seaming process, that means your seam is defective seam you are performing, or faulty seam we can say the faulty seam. So to check the faulty seam, we are subjecting a can with a pressure testing. We are subjecting the can to pressure testing. So to check the perfection of the seam, whether any leakage is there or faulty seam is there or not. So that is the pressure testing. So now what is double seaming? We are telling the double seaming. So basically double seaming is an operation. All this step is the operation. So it is a step in which what is happening, curl of the lid and the flange of the can body, curl of the lid or flange of the body can are hooked, then rolled and pressed by a machine that is called as double machine, pressed tightly by a machine, double machine. So this double machine generally operates in two successive operations. So they are having a two operation, first seaming operation and double seaming operation. So here you can see this spotlight. So this is basically, this is the can body और ये हमारा head space है, ठीक है? Can body में this is the layer where we have filled the material with a filling media, and this is the lid. This portion, upper portion is the lid. So this lid we are joining to the can body. So this is the curl. This portion you are seeing. Hello. Yes, sir. So Yes, sir. This portion is the curl of the lid. Don't forget. This is most important, and most of the people confused. What is can end, can lid, can curl, can flange? So you have to remember. So this is the curl. Curl always will be there at the can lid. ये हमारा ढक्कन है. जो ये जो portion, bend portion है ना, so that is the curl portion of the can lid or can cover. Whereas this is the can body. So this can body, this is also a bending portion. So this is the flange portion of the can body. ये curl portion of the can lid, and this is the flange portion of the can body. So we are joining this curl portion of the lid and flange portion of the body, can body, by a double seaming machine. So we are having a double seaming machine which operates in two successive operation. So this double seaming machine जो है, इनका two successive operation है. एक one side रहेगा, एक दूसरा side रहेगा. So first seaming operation machine जो है, वो पहले आएगा.
वो क्या करता है, वो कर्ल ऑफ द लीड, ये जो पोर्शन है कर्ल, और इसका जो बॉडी ऑफ द फ्लेंज है उसके अंदर में डाल देता है, ठीक है, ज्वाइन करेगा, डाल करके उसको जस्ट एक हुक फॉर्म करता है, इस तरह का हुक फॉर्म करेगा। अंडरस्टूड? दिस इज डन बाय फर्स्ट सीमिंग ऑपरेशन, फर्स्ट सीमिंग ऑपरेशन, फर्स्ट सीमिंग ऑपरेशन रोल। इन सेकेंड ऑपरेशन सीमिंग रोल व्हाट विल हैपन, ये जो हुक हमारा फॉर्म हुआ है उसको क्या करता है, वो प्रेस करके टाइट कर देता है। तो वो प्रेस करके जो टाइट करता है सेकेंड सीमिंग ऑपरेशन मशीन, उसी के कारण हमारा एयर टाइट सील बनता है और हार्मेटिक सील हमारा बनता है। सो दिस इज बेसिकली विद द हेल्प ऑफ डबल सीमिंग मशीन। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Yes, Now sir. we will go the operation, how it is happening. Okay. So double seaming machine, generally it is having a 3 parts. It is most important. You have to remember, because this comes in your competitive exam, JRF, SRF, as well as ARS. So double seaming machine, basically it is having a 3 parts. First part is called as base plate. बेस प्लेट जो होता है उसके ऊपर में हम कैन का बॉडी विथ ए लिड डाल देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज बेस प्लेट। बेस प्लेट के ऊपर में हेड पे कैन लिड के ऊपर में हमारा चक होता है। वो चक क्या होता है, काउंटर सिंक डेप्थ होता है कैन लिड का, उसमें जाकर के टाइटली फिट हो जाता है, सो दैट इज द चक। एंड लास्ट वन इज द सीमिंग रोल। जो सीमिंग रोल है वो हमारा 2 होता है, एक फर्स्ट सीमिंग रोल एंड दूसरा होता है सेकंड सीमिंग रोल। सो बेस प्लेट का फंक्शन है बेसिकली इट सपोर्ट्स द कैन। जो बेस प्लेट है उस पे कैन रखेंगे तो इट सपोर्ट्स द कैन, और उसको क्या करता है, वो उठाता है। उठाएगा तो ऊपर में जो हमारा ये चक है, वो चक लीड के काउंटर सिंक डेप्थ है उसमें जाकर के वो टाइटली अटैच हो जाएगा, ठीक है। जो चक है ऊपर में, जो कैन लीड के ऊपर में जाकर के फिट हुआ है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, वो अपने एक्सिस पे घूमता है। तो जब हमारा बेस प्लेट है, ऊपर में कैन बॉडी है, कैन बॉडी आ गया, और ऊपर हेड पे हमारा चक टाइटली काउंटर सिप डेप्थ, लीड के काउंटर सिप डेप्थ में जाकर के टाइटली अटैच मींस फिट हो गया, और चक अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, तो वो क्या करेगा, वो रोटेशन होना, घूमना स्टार्ट करेगा। तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ चक, जो हमारा कैन बॉडी है वो भी उसमें जाके टाइटली फिट हो गया है, वो हमारा रोटेट कर रहा है, तो हमारा कैन बॉडी भी एंड के साथ में रोटेट होना स्टार्ट कर देता है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ बेस प्लेट एंड चक। अंडरस्टूड? Yes, sir. Now, the third step, most important step, seaming roll. That seaming roll, they are having a 2 seaming roll, first seaming roll and second seaming roll. ये हमारा बेस प्लेट है बॉटम में, और ऊपर में हमारा चक है, और इसके दोनों साइड में, एक साइड और 2 साइड, दोनों साइड में फर्स्ट सीमिंग रोल, और इस साइड जो है हमारा सेकेंड सीमिंग रोल। फर्स्ट सीमिंग रोल जो होता है वो हमारा डीपर ग्रूव होता है, उसका जो माउथ ओपनिंग होता है वो डीपर ग्रूव होता है। वो क्या करता है, वो हमारा ऑपरेशन में आएगा, कैन तो नाच रहा है विथ लीड, फर्स्ट सीमिंग रोल आएगा, वो क्या करेगा, जो कर्ल था कैन लीड का, वो बॉडी फ्लेंज के अंदर में ले जाकर के लीड को, सॉरी कर्ल को वो मोड़ देगा और हुक फॉर्म करेगा, ठीक है। हेलो? Yes, sir. हाँ, सो फर्स्ट सीमिंग रोल जो है वो डीपर ग्रूव होता है उसका माउथ, वो क्या करता है, कर्ल को, कैन लीड की कर्ल को वो बेंड करके जो कैन बॉडी का फ्लेंज है उसके अंदर में वो डाल देता है और एक हुक फॉर्म करता है। हुक फॉर्म कर लिया। सेकेंड स्विमिंग रोल जो है वो सैलो ग्रूव होता है,
वो क्या करता है, वो आएगा और प्रेस करेगा इस साइड से, एक साइड फर्स्ट स्विमिंग रोल, दूसरा सेकंड स्विमिंग रोल। वो केवल स्विमिंग पोर्शन में जाकर के वो प्रेस करेगा और टाइट करेगा, और जैसे ही वो प्रेस करके टाइट करेगा तो वी विल गेट द एयर टाइट सील और हर्मेटिक सील। ठीक है, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड? अब Yes, sir. हम Yes, sir. थोड़ा सा डिटेल में हम अभी यहाँ पे जा रहे हैं। यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर इज देयर, मींस फिगर इज देयर, having a different letter alphabetically A, B, C, D. Where is E? This is E. E and this is F. अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। F जो है हमारा कैन बॉडी है, ये यू कैन सी हियर कैन बॉडी, F कैन बॉडी है। इसके अंदर में हमारा फिल्ड मटेरियल है विथ फिलिंग मीडिया, एंड आफ्टर एग्जॉस्टिंग वी हैव टू प्लेस दिस कैन ओवर द डबल स्विमिंग मशीन। सो डबल स्विमिंग मशीन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। डी क्या है हमारा, डी जो है हमारा बेस प्लेट है, ये जो है बेस प्लेट, इसके ऊपर में हम क्या करते हैं, कैन बॉडी को रख देते हैं। तो कैन बॉडी रख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, डी को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो उसके जस्ट कैन बॉडी के सर के ऊपर में चक है, ए इज अ चक। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, ए इज द चक। तो जैसे ही हम बेस प्लेट को उठाएंगे, उठा करके क्या होगा, वो ये चक है, ये चक कैन लीड का जो काउंटर सिंक डेप्थ है, अब काउंटर सिंक डेप्थ क्या है वो भी मैं अभी बता रहा हूं। ये डेप्थ में जाकर के टाइटली फिट हो जाता है, और चक अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता है। तो जब टाइटली हमारा कैन बॉडी, दिस कैन बॉडी विथ लीड अगर चक में टाइटली अटैच हो जाएगा, फिट हो जाएगा, बिकॉज दिस चक इज रोटेटिंग एट देयर ओन एक्सिस, तो कैन बॉडी भी हमारा विथ लीड घूमना स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा घूमने लगा अभी, ठीक है। हेलो, अभी Yes, sir. कैन Yes, बॉडी sir. घूम रहा है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस सी एंड बी। सी और बी जो है हमारा स्विमिंग रोल है, ये हमारा बी है फर्स्ट स्विमिंग रोल और सी है हमारा सेकंड स्विमिंग रोल। फर्स्ट स्विमिंग रोल का कैरेक्टर है, जो उसका जो दांत होगा वो हमारा डीपर ग्रूव होगा। यू कैन सी हियर, इसका जो टीथ है, this first swimming roll is having a deeper groove, whereas second swimming roll is having a shallow groove. तो ये क्या करेगा, ये पोर्शन, ये कर्ल ऑफ द लीड एंड बॉडी ऑफ द फ्लेंज के संपर्क में आएगा, और आकर के क्या होगा, ये कर्ल ऑफ द लीड और बॉडी ऑफ द फ्लेंज दोनों को क्या करेगा, बेंड करके एक हुक को फॉर्म कर देगा। ठीक है, जब फर्स्ट स्विमिंग Yes, sir. रोल का काम खत्म हो जाएगा, तो ये फर्स्ट स्विमिंग रोल यहां से हट करके साइड भाग जाएगा, और एट द सेम टाइम जैसे ही फर्स्ट स्विमिंग रोल मशीन हट जाएगा, सेकेंड स्विमिंग रोल अपने ऑपरेशन में आएगा, और ये सैलो ग्रूव, ये हमारा जो हुक अभी फॉर्म हुआ था उसमें आकर के प्रेस करेगा और टाइटली प्रेस करेगा। तो जो हुक हमारा लूज था वो क्या हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा, कंप्लीटली टाइट हो जाएगा और एयर टाइट सील हमें बना के देगा। तो दिस इज बेसिकली द ऑपरेशन ऑफ डबल स्विमिंग मशीन। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमको भूलना नहीं है, जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से, एसआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से और एआरएस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम Yes, sir. थोड़ा और हम डिटेल में हम अब दिखा रहे हैं जो कैसे ये काम करेगा। तो ये वाला पोर्शन क्या है, हाँ, बेस प्लेट, Base plate. बेस बेस प्लेट, प्लेट। ये वाला पोर्शन
चक चक है, चक और ये वाला पोर्शन सेकेंड 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 रोल है। नहीं, ये फर्स्ट स्विमिंग रोल है, इसका दांत ग्रूव ज्यादा है ना। हाँ यस सर फर्स्ट है। हाँ सर। फर्स्ट स्विमिंग का कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, उसका जो ग्रूव होगा डीपर होगा। डीपर ग्रूव। यस डीपर ग्रूव होगा। So this is the character of first swimming role and this is the second swimming role. सेकेंड इसका shallow groove है। तो पहला ऑपरेशन ये आएगा, उसके बाद ये दूसरा आएगा। तो फर्स्ट स्विमिंग, जब हमारा फर्स्ट स्विमिंग रोलिंग मशीन काम करता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। ये जो है हमारा कैन बॉडी है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला कैन के ऊपर का पोर्शन, जिसको कवर बोलते हैं और लिड बोलते हैं और ढक्कन बोलते हैं। तो ये पोर्शन जो था कर्ल पोर्शन, ये कर्ल पोर्शन क्या होता है, फर्स्ट स्विमिंग में बेंड होकर के बॉडी फ्लेंज, कैन बॉडी फ्लेंज के साथ में एक हुक फॉर्म करता है। तो ये यहाँ पे हुक बन फॉर्म तो हो गया, बट ये हमारा टाइट नहीं है, ये लूज है, ठीक है। सेकेंड स्विमिंग रोल जो है वो क्या करता है, वो आता है उसको टाइटली प्रेस कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, एयर टाइट सील हमारा फॉर्म करता है। काउंटर सिंक डेप्थ जो हम बोल रहे थे, जो ये हमारा पोर्शन है, लीड पोर्शन, कैन के ऊपर में ढक्कन पोर्शन है, तो जो डिस्टेंस हमारा टॉप ऑफ द सीम, बेसिकली दिस इज द सीम, ये जो पोर्शन है सीम पोर्शन है। सीम आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, यस सर। हाँ, काउंटर सिंक जो है, हम बोल रहे थे ना, काउंटर सिंक डेप्थ में जाकर के ये हमारा चक जो है टाइटली फिट हो जाता है। तो ये जो कवर है, लीड है, लीड से लेकर के यहां से यहां का हाइट, टॉप ऑफ द कवर, कैन कवर, और टॉप ऑफ द कैन लीड टू द टॉप ऑफ द सीम, कैन सीम का जो लेंथ है या डिस्टेंस है, उसी को हम बोलते हैं काउंटर सिंक डेप्थ। अंडरस्टूड? यस It is the length, countersink depth is the depth or distance from the top edge of the seam to the upper edge of the can lid or can cover, ठीक है। सो यहां से लेकर के, टॉप से लेकर के, और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं काउंटर सिंक डेप्थ, ठीक है। ये हमारा जो मशीन है ये बेसिकली हैंड ऑपरेटेड है, होम कैनिंग, बट जो ऑटोमेटिक पोर्शन होता है, ऑटोमेटिक वाला, उसमें यू कैन सी दिस इज आवर कैन। ये जो कैन है, एम्प्टी कैन, क्या करते हैं, ये हमारा है बेस प्लेट, उसके ऊपर में रख देते हैं। अब ये बेस प्लेट को हम क्या करेंगे, उठाएंगे, तो ये ऊपर का जो हेड पोर्शन है ये हमारा है, क्या है, चक, चक में जाके फिट हो जाएगा। और ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा है सीमिंग मशीन, जो फर्स्ट सीमिंग एंड सेकेंड सीमिंग। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये फर्स्ट सीमिंग एंड सेकेंड सीमिंग, 2 इज देयर। पहला आएगा इसमें ऑपरेशन में, उसके बाद पहला खत्म होगा तो दूसरा दांत वाला आएगा और उसको टाइटली हमारा एयर टाइट सील प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यस अच्छा, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं, जो कुछ वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, तो हमारा YouTube तो एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, आई थिंक, फिर भी देखते हैं, आई विल ट्राई। चलो, जब तक बफरिंग हो रहा है तब तक हम दूसरा चीज को कवर करते हैं, ओके। नाउ जो सीम, डबल सीमिंग मशीन के द्वारा जो हमने सीम बनाया, कवर, कैन कवर और कैन लीड को बॉडी ऑफ द कैन के साथ में जो ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में हमारा सीम बनता है।
कैन सीम बनता है। उस सीम का अगर हम क्रॉस सेक्शन करेंगे, अगर हम उसको काटेंगे तो वो बेसिकली कैसा दिखेगा, उसके लिए वी हैव टू नो क्या सीम थिकनेस होता है, क्या सीम लेंथ होता है, क्या ओवरलैप होता है, क्या कवर हुक लेंथ होता है, क्या बॉडी हुक लेंथ होता है। वी मस्ट नो बाय फॉर्मिंग by forming a double machine we will get all this detail if we are cutting। अगर हम उसको काटेंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीम थिकनेस बेसिकली इट इज द थिकनेस फ्रॉम द हाउ वी आर मेजरिंग सीम थिकनेस। वर्नियर कैलिपर लेंगे, पहले तो काटेंगे, काटने के बाद में वर्नियर कैलिपर लेंगे और उसका थिकनेस को मेजर करेंगे। थिकनेस को जो मेजर करेंगे तो बेसिकली वी आर डिफाइनिंग द सीम थिकनेस, इट इज द outer edge of the seam to the inner edge of the seam. Seam thickness basically we are defining outer edge of the seam to the, it is the length or distance from the outer edge of the seam to the inner edge of the seam. So this is the seam thickness. Whereas seam length, how we are defining? This is the top edge of the seam and this is the bottom edge of the seam. So distance between the top edge of the seam and bottom edge of the seam is called as seam length. Seam की thickness क्या है? Distance between outer edge of the seam to And inner edge. Seam length में क्या है? Distance between or length between top edge of the seam to the And bottom bottom edge of seam. good. Now सर इसी को काउंटर सिंक डेप्थ कहते हैं क्या? काउंटर सिंक डेप्थ ये है, ये हमारा ये काला वाला जो है, Yes, ये sir. काला वाला जो है हमारा कैन कवर है और कैन Yes, लिड जिसको बोलते हैं, और ये उजला वाला जो पोर्शन है, शैडो पोर्शन वाला, ये हमारा कैन बॉडी है। Can body है. बॉडी, इस बॉडी Yes, के sir. फ्लेंज में कैन का जो लीड का जो कर्ल है उसको फंसा देते हैं, हुक फॉर्म कर देते हैं और उसको टाइटली प्रेस कर देते हैं, तब जाकर के हमारा सीम फॉर्म होता है। तो काउंटर सिंक डेप्थ जो है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द सीम टू द दिस आउटर एज ऑफ द कैन लीड। ये कैन लीड का यहां Yes. से लेकर के और यहां से काउंटर सिंक डेप्थ है। तो ये top edge of the seam to the outer edge of the Outer edge of the can lid. can lead. So it is the distance from top edge of the seam to the outer edge of the can lid or can cover. Lid. So that is called as counter sink Yes. depth. Seam thickness समझ में आ गया, seam length समझ में आ गया, counter sink depth समझ में आ गया। Now cover hook length or end hook length. You can focus here, end hook length or cover hook, end hook length or cover hook length. दूसरा जो है सेम बॉडी हुक लेंथ, ये बेसिकली कब फॉर्म होता है? बेसिकली बॉडी हुक लेंथ, ये यू कैन सी हियर बॉडी हुक लेंथ। बॉडी हुक लेंथ में क्या होता है, जो बॉडी का जो हुक है, कैन बॉडी का जो हुक है, उस लेंथ को हम मेजर करते हैं। तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे बॉडी हुक को? सो इट इज द पोर्शन ऑफ द फ्लेंज, बॉडी फ्लेंज और कैन बॉडी फ्लेंज है ना, ये तो फ्लेंज है ना हमारा। इट इज द पोर्शन Yes, ऑफ द कैन बॉडी फ्लेंज विच हैज टर्न डाउन, जिसको हम नीचे की तरफ डाउन कर दिए। कब किए? ड्यूरिंग द डबल सीमिंग ऑपरेशन। ठीक है, बॉडी हुक Yes, लेंथ, sir. ये बॉडी का जो हुक जो है ना, उस लेंथ को हम मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे? सो इट इज द पोर्शन ऑफ द लेंथ ऑफ कैन बॉडी फ्लेंज, बॉडी फ्लेंज है ना ये, Yes. पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेंज विच हैज टर्न डाउन। कब हमने डाउन किया? तो डबल सीमिंग ऑपरेशन जब हम कर रहे थे
तो बॉडी फ्लेंज हमारा हुक फॉर्मेशन के दौरान में वो मुड़ गया, तो डिस्टेंस हमें मेजर करना है। सो इट इज द पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेंज which has turned down during the double seaming process. So can body का hook का जो length है उसको हम measure करते हैं by this way. Then the cover hook length. Cover hook length है ये हमारा cover hook. Cover hook हमारा कहाँ से होगा? ये जो portion है यहाँ cover hook और ये basically this is the cover hook. So how it is forming? Basically it is the portion of the cover hook. It is the portion of the cover hook or curl of the can lead which is turned upward, which is turned up. Body flange क्या होता है? वो turn करता है, bend करता है down, नीचे तरफ. Downward. Whereas curl का जो होता है, can end का जो curl होता है वो upward direction में bend होता है during the double seaming process. So that is the cover hook length. ठीक है? Now overlap आ रहा है. Overlap that means body flange जहाँ जो पे है, दोनों ओवरलैप करे। हाँ, so that is the portion of the length where body hook और can hook दोनों एक दूसरे को overlap करता है. That is the overlap. ठीक है? ये body hook है और ये हमारा end hook है. दोनों हुक एक दूसरे को जहां पे ओवरलैप करेगा दैट इज द ओवरलैप. ठीक है? सीम गैप क्या होता है? ड्यूरिंग द डबल सीमिंग ऑपरेशन, अगर हम डबल सीमिंग ऑपरेशन के दौरान में जो हुक फॉर्म करते हैं और उसको टाइटली प्रेस करते हैं, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ गैप. वो गैप हमारा छूट जाता है. सो दैट इज द vacant space between the top portion of the body flange to the inner portion of the end curl और cover curl. ये curl portion है ना, और ये हमारा body flange portion है. दोनों के बीच में जो gap छूट जाएगा during double seaming process, that is called as seam gap. ठीक है? Now the thickness, बॉडी प्लेट का थिकनेस को मेजर करना है तो कटा हुआ पोर्शन रहेगा. जो कैन बॉडी का जो थिकनेस होगा वो वर्नियर कैलिपर से लगा देंगे तो वी विल गेट द थिकनेस ऑफ प्लेट थिकनेस, जिसको बोलते हैं बॉडी प्लेट थिकनेस. एंड प्लेट थिकनेस, जो मेटल प्लेट्स जो होगा कवर का, मींस कैन कवर का और लीड का, उसका थिकनेस दैट इज कॉल्ड एज एंड प्लेट थिकनेस. ठीक है? अंडरस्टूड? यस सर. किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट कॉमनली कम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू डोंट हैव टू फॉरगेट. सीम गैप क्या होता है? सीम गैप क्या है? डबल सीमिंग ऑपरेशन जब हमारा करते हैं सीम फॉर्म करने के लिए, तो उस समय में हमारा कुछ गैप रह जाता है. क्यों रहेगा? बिकॉज वी आर बेंडिंग two things. We are bending the curl of the lid and flange of the body. So that is the gap between the top of the body flange and inner edge of the curl of the can cover. End curl जो है ना, ये curl portion का inner edge जो है और top edge of the body flange, दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज द सीम गैप. बेसिकली ये हमारा गैप रहेगा ही. एंड दिस एक लाइनिंग कंपाउंड देख रहे हो, ये जो हमारा एंड प्लेट हुक है और बॉडी हुक है, दोनों के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, बेसिकली दिस इज फिल्ड विथ ए लाइनिंग कंपाउंड. लाइनिंग कंपाउंड बोलते हैं रबर कंपाउंड का बना रहता है, और यही हमारा मदद करता है जो एयर टाइट सील्ड फॉर्म होने में करता है. ना एयर हमारा बाहर से अंदर आ सकता है और ना अंदर से बाहर हमारा जा सकता है. ठीक है? सर इसको सीमिंग करने से पहले डाला जाता होगा ना रबर कंपाउंड को? नहीं, वो हमारा जब जो कैन एंड है, जो लीड है हमारा ना,
लीड के अंदर वाले पोर्शन में ऑलरेडी वो हमारा कवर रहता है। रबर जो होता है माथा में, जैसे रबर लगाते हैं ना, लड़की लोग लगाता है ना हेयर को टाई करने के लिए। सो लाइक दैट वन रबर will be there which will cover entire curl of the can lid. हेलो, यस सर। जो कर्ल लीड जो होगा ना, लीड ऑफ द कर्ल, उसके नीचे में वो ऑलरेडी रबर लाइनिंग कंपाउंड फिल रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये हमको भूलना नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, Yes, sir. so this is the parts of seam thickness already हमने बताया। just for definition you can have, so basically it is the distance from inner edge of the seam to outer edge of the seam. already हमने ये cover कर दिया है। seam gap distance between the can body and cover end at the top of the double seam. now the seam dimension, अभी जब हम डबल सीमिंग मशीन के थ्रू सीमिंग परफॉर्म करते हैं तो होता क्या है, वी विल गेट सम डायमेंशन। डायमेंशन मींस लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब होते हैं, कितना थिकनेस होगा, दैट इज द डायमेंशन। सो सीम थिकनेस जो होता है बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। क्योंकि अगर हम थिकनेस मेजर करना चाहते हैं, जो प्लेट, मेटल प्लेट, चाहे वो लीड का कैन लीड हो या कैन बॉडी हो, वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द प्लेट। वो जितना मोटा होगा या जितना पतला होगा उस तरह से हमारा सीम का थिकनेस बनेगा, है ना। सो दिस थिकनेस इट डिफर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर। थिकनेस ऑफ द मेटल प्लेट्स it differs from manufacturer to manufacturer. This is important. What is important here? After completion of double seam, what will be the thickness of the metal? So after performing double seam, the finished double seam consists a 5 thickness of metal. ये चीज समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, नहीं सर, 5 थिकनेस मतलब क्या हुआ? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। वही तो जो डबल सीमिंग मशीन के थ्रू जो हम सीमिंग परफॉर्म करते हैं, सो आफ्टर डबल सीमिंग, फिनिश्ड डबल सीम हमारा 5 थिकनेस ऑफ मेटल से बना होगा। वो 5 थिकनेस मेटल, ये देखो, ये हो गया एक, ये हमारा कैन लीड का है, कैन लीड, और ये बॉडी कैन बॉडी है। सो एक मेटल, 2 मेटल, 3 मेटल, 4 मेटल और 5 मेटल। समझ में आया? Yes, sir. No, sir. यस सर। जो डबल सीमिंग मशीन के द्वारा जो हम डबल सीम करते हैं कैन लीड को और कैन बॉडी को, तो उसके बाद में जो हमारा सीम का जो थिकनेस होता है, इट कंप्राइजेस 5 थिकनेस। 5 थिकनेस मेटल प्लेट थिकनेस, 1, 2, 3, 4, 5। स्पॉटलाइट पे ध्यान दो, स्पॉटलाइट जो मैं दे रहा हूं ना। हेलो, Yes, sir. ये 5 थिकनेस समझ में आया? Yes, sir. हाँ यस सर। तो इसमें आउट ऑफ 5 यू कैन सी 3 थिकनेस जो है वो हमारा कैन लीड का है, A1, 2 और 3, क्योंकि कैन का ऊपर का लीड का पोर्शन है ना। सो सेम थिकनेस में 3 मेटल प्लेट थिकनेस जो है कैन लीड का है, और 2 जो थिकनेस है वो हमारा कैन बॉडी का है। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, Yes. so now this is the 5 thickness of metal plates after completion of double seaming operation.
जहां पे हमारा डबल सीमिंग मतलब सीम लीड से और बॉडी से, मतलब ढक्कन, कैन लीड और कैन बॉडी, जहां पे हमारा सीम फॉर्म होगा वहां पे 5 थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट्स होंगे। बट जहां पे कैन बॉडी, हमारे कुछ कुछ कैन होते हैं जैसे थ्रिप्स कैन, जो कैन बॉडी है, कैन बॉडी कैसे बनाते हैं? चलो हम पैसे का ही एग्जांपल लेते हैं। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500 रुपीज। हाउ वी आर परफॉर्मिंग द कैन बॉडी? कैन बॉडी कैसे बनाते हैं? क्या होता है, हमारा एक मेटल का सीट होता है जस्ट लाइक 500 रुपीज, ठीक है? इसको क्या Yes, करते sir. हैं? स्लोली स्लोली, दिस इज कॉल्ड एज मेटल प्लेट। इसके चारों कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा नॉच कर देते हैं हम। नॉच करते हैं, नॉच मतलब कट करते हैं, कट करके उसको थोड़ा सा बेंड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज नॉचिंग एंड फॉर्मिंग। फॉर्मिंग के बाद में बेंडिंग। तो नाउ व्हाट वी विल डू, अब ये जो कैन बॉडी है, मेटल प्लेट्स था, इसको हम स्लोली 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 क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में लाएंगे। और जो वो नॉच एज था, नाउ यू कैन सी सिलेंड्रिकल। Yes, हेलो, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो Yes, sir. जहां पे कैन बॉडी एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है, दे आर ऑल्सो हैविंग सम हुक एज। एक दूसरे को हुक में फंसाएंगे तभी जाकर के ये हमारा शेप होगा। सो हियर ऑल्सो वन सीम इज देयर। कैन बॉडी हो गया ना ये, और इसके Yes, ऊपर में हम हुक डाल देते हैं, ऐसे करके हुक डाल देते हैं। सो दिस इज द कैन सीम। ये दो पोर्शन आके ज्वाइन हो रहा है ना जहां पे, सो बॉडी सीम है, इसको बोलते हैं बॉडी सीम। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये बॉडी सीम, जब हम डबल सीमिंग ऑपरेशन करते हैं, डबल सीमिंग ऑपरेशन में क्या बोलता है वो, नाउ यू फोकस हियर ऑन दिस पावर पॉइंट। जो डबल सीमिंग ऑपरेशन होता है, ये हमारा कैन बॉडी है। कैन बॉडी का हमारा फ्लेंज और कर्ल ऑफ द लीड। सो जो बॉडी फ्लेंज जहां पे फॉर्म हो रहा है, ये केवल एक जगह नहीं हो रहा है ना, ये हमारा मुड़ेगा, चारों साइड मुड़ेगा जाकर के, कैन बॉडी फ्लेंज फॉर्म होगा। जहां पे हमारा सीम, बॉडी सीम, कैन बॉडी सीम आएगा, वो भी तो जाके मुड़ेगा, वो भी मुड़ेगा ना हुकिंग के टाइम में। यस सर। तो वहां पे जो थिकनेस है, वो थिकनेस बढ़ जाएगा। 5 के जगह पे वो हमारा थिकनेस 7 हो 7, जाएगा, 8. क्योंकि 2 सीम है ना, 2 मेटल बॉडी पार्ट्स और आ रहा है, ये 1 ये 2, तो 5 तो ऐसे नॉर्मल में आ रहा है 5, और बॉडी सीम जहां पे आएगा वहां पे 7 मेटल प्लेट थिकनेस आ जाएगा। Yes. अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। क्योंकि 5 तो नॉर्मल हमारा डबल सीमिंग के बाद में 5 ही मेटल प्लेट थिकनेस होंगे, लेकिन जहां पे हमारा कैन बॉडी सीम आएगा, बिकॉज द 2 metal plate thickness of body seam, the seam thickness will increase. It consists 7 metal plate thickness, where the body seam will coincide. जहां पे वो सीम में जाकर के कोइंसाइड करेगा, वहां पे 7 metal plate thickness हमारा हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ अगेन यू फोकस। अगर हम कैन बॉडी, ये जो मेटल प्लेट्स है, इसको अगर हम चारों कॉर्नर पे नॉच नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, और डायरेक्टली अगर हम इसको सीमिंग करेंगे तो हमको इसमें हुक बनाना होगा, इसमें 2 और इसमें 2, ठीक है, और उसको हमें सीम करना, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो ये जो सीमिंग पोर्शन है हमारा, ये जो सीमिंग पोर्शन है, ये सीमिंग पोर्शन पे जाकर के 4 मेटल प्लेट थिकनेस हमारा बढ़ जाएगा। सो इफ द कैन metal plates not notched,
during the can formation or can body formation, then there will be a 11 plate thickness, metal plate thickness. Understood? Yes, sir. So that is the this you can see. Finished double seam consists of 5 metal plate thickness where it coincides with body seam. Can body seam से जहां पे वो coincide करेगा, it consists of 7 metal plate thickness. If blanks is not notch, अगर हम नॉचिंग नहीं करेंगे मेटल प्लेट पे तो क्या होगा? डबल सीम where it meets the lock seam, it consists 11 metal of thickness. So 5 thickness of metal, 7 thickness of metal, 11 thickness of metal. Understood? Yes, Yes, sir. Now the average seam dimension जो हमारा है एवरेज सीम लेंथ को हम W से भी डिनोट करते हैं और L से भी डिनोट करते हैं. उसको सीम विड्थ भी बोलते हैं, सीम लेंथ भी बोलते हैं. सीम थिकनेस जो होता है हम उसको T से डिनोट करते हैं. T, you can see here capital T, seam thickness, seam length और width W से डिनोट करते हैं. So this width it's generally ये हमारा रेंज है. काउंटर सिंक का ये हमारा डायमेंशन है. बॉडी हुक लेंथ का ये हमारा डायमेंशन and then cover hook length dimension, seam thickness dimension. So this is the just on an average seam dimension. Now some formula of thickness of seam is there. We have to calculate. This is the most important step that we are performing during double seaming operation. So 5 metal plates, basically finished double seam is having a 5 metal plates thickness. So basically 5 metal parts are involving seam thickness, जिसमें से 3 metal part जो होता है वो हमारा can lid का होता है और 2 metal parts जो होता है हमारा can body का होता है. So what will be the formula of seam thickness? T basically it is a seam thickness. So 3 TC or TE also we can say, no issue. So TC is the thickness of cover tin plates or thickness of lid. क्योंकि 3 metal parts आ रहा है, that's why we are taking 3 thickness of cover lid और tin plate. हाँ, and 2 parts जो हमारा होता है can body का आता है, इसीलिए thicker metal plates का जो thickness है 2 parts से हम multiply करते हैं, and then we are also having a gap, so that also we have to include in seam thickness. ठीक है, generally gap जो है 6 to 10% of 5 metal parts. Free space क्या बोलता है? Free space बोलता है T is the seam thickness. Seam thickness कैसे कैलकुलेट करते हैं? 3 metal parts cover end plate thickness और end lid can lid thickness और 2 metal parts का जो body parts thickness है can body thickness उसको और gap. So वहां से जो भी मेजरमेंट आएगा उसको हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है. 3 cover end thickness और 2 can body thickness, उसको अगर हम मेजर करेंगे that is the free space. Also you can see the gap. गैप में है ना, ये 2 पार्ट्स है और गैप भी है. फ्री स्पेस इज नथिंग, इट इज a gap only. Now if the cover end thickness or body plate thickness both are equal, then what will be the same thickness? So then because 3 parts metal plates cover lid का आ रहा है, cover can lid का आ रहा है और 2 parts हमारा can body का आ रहा है metal plates, तो दोनों को हम क्या करेंगे? सम कर देंगे और प्लस जो गैप होगा that is the seam thickness. Then overlap. सर आवाज कट रहा है. हेलो सर आ रही है. अभी आ रही है? आवाज ठीक से नहीं आ रही. अभी आ रही है? हेलो
हेलो, Yes, sir. Yes. अभी आ रही है? हेलो, 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 हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, just 2 slide only I will cover, no issue. अभी आ रहा है? ठीक से नहीं आ रही है सर, रुक रुक के आ रही है। अभी सुन रहे हो? अभी सुन रहे हो? नो सर, आवाज कट रहा हेलो, है। कट रहा है सर हेलो। अभी भी। अभी नहीं सुन रहे हो? सर हाँ, आवाज अब आ कट रहा है। के आ रहा है। सी ओवरलैप पोर्शन, सुन रहे हो? हेलो, 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 Sir. Yes, sir. सुन पा रहे हो? कट क्या आ रहा है सर? नहीं सुन रहे हो? सर 1.1 कैसे है? 1.1 जो होते हैं, जब हम सीमिंग, here you can see this portion you are seeing. Yes, sir. नो सर। अरे यार, ये स्लाइड देखो ना, पावर पॉइंट। Yes, sir. ओके। सो क्या होते हैं ना, एक्चुअल लेंथ हम नहीं कवर कर पाते हैं। अगर हम बेंडिंग करेंगे, सीम जब फॉर्म करेंगे, तो सम ऑफ द लेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग 1.1, नॉट 1। एंड प्लेट का जो थिकनेस है या लेंथ है, टीई लिखते हैं ना, वी आर दिस पोर्शन ना इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैप। सम पोर्शन जो है ना, गैप फॉर्म हो रहा है, सो दिस सीम लेंथ इज इंक्रीजिंग। सीम लेंथ में क्या क्या कवर हो रहा है? हमारा कवर हो रहा है एंड हुक लेंथ, है ना? दिस Yes, इज द sir. एंड हुक, and this is also covering in the body hook, and also the gap. ये जो गैप है वो भी हमारा आ रहा है। So because of the formation of gap in the seam length is increased. अगर केवल मेटल का ही लेंथ अगर हम लेंगे तो that is the original length, but because while forming the seam there will be formation of gap, the length of the seam is increasing. So that's why we are taking 1.1 instead of 1.1 we are taking, that means 10 to some percentage na length. कहाँ था वो? This one, gap 6 to 10%. So 1.1 we are taking, because during formation of seam there will be increase in seam length. Why the seam length is increasing? Because there will be formation of seam gap, and because of that we are also adding we are adding 1.1 TE, 1.1 instead of 1 we are adding 1.1. So अगर हम seam length से end hook का length, body hook का length और 1.1 TE, that is the thickness of end hook. Thickness of end hook कैसे होंगे? ये this you can see EH is the end hook, so this is the lead और end भी बोलते हैं। तो इसका जो लेंथ है ये प्लस BH जो बोल रहा है बॉडी हुक,
सो बॉडी हुक का लेंथ जो है, यू कैन सी दिस इज द बॉडी हुक, ये यहां से लेकर के यहां तक. सो बॉडी हुक, एंड हुक का लेंथ, बॉडी हुक का लेंथ and 1.1 TE. 1.1 TE is the thickness of end plate. So thickness of, this is the seam thickness. So outer edge of the seam to the inner edge of the seam. So 1 TE, ये इसका जो thickness होगा and plus gap. So seam length से अगर हम ये सारा चीज माइनस कर देंगे, so that will be the overlap. ठीक है? Okay. Actual overlap, Yes, sir. end hook plus body hook plus 1.1 end hook thickness, end plate thickness को seam length से अगर हम subtract करेंगे, that will give the actual overlap. Now for length width seam, what we are doing, जो seam length है वहां से 2.2 TE plus 1.1 TB, the length of overlap BH CH plus 1.1 TC minus seam length. So overlap percentage, how we are calculating? BH is the body hook, CH cover hook plus 1.1 TC or TE. TC is the end plate thickness. उसको सेम लेंथ से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. लाइक दैट, ये जो फॉर्मूला है ना, सेम फॉर्मूला, ठीक है? Yes, sir. Because we have to express in percentage, that's why we are multiplying with 100, and that is divided by seam length W minus 2.2 TE plus 1.1 TB. So this is the end plate thickness, body plate thickness, and this is the end plate thickness. इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ये एक फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ बॉडी हुक बटिंग जिसको बोलते हैं, BH minus 1.1 TB divided by L 1.1 अगर ब्रैकेट यहां पे अगर 2.2 है, अगर 2 TE होगा, और इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है W माइनस 2.2 TE प्लस 1.1, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. ये जो देख रहे हो पोर्शन, so this is percentage of body hook butting and it should be more than 70%. ये फॉर्मूला है, थोड़ा मीन्स ये करना पड़ेगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे. तो अगर कैन हमें कहीं मिलेंगे तो सुपरमार्केट से लेके आएंगे, उसको काटेंगे, काटने के बाद देखेंगे हाउ मच थिकनेस इज देयर, सेम लेंथ इज देयर, उसमें कितना हमारा एंड हुक है, कितना हमारा बॉडी हुक है, और दोनों का ओवरलैप परसेंटेज कितना है, वेदर इट इज कमिंग टू 70% और ओनली 40% और 50%. सो ओवरलैप परसेंटेज करना है तो ये बॉडी हुक लेंथ, कवर हुक लेंथ प्लस थिकनेस ऑफ द लिड, एंड उसको सेम लेंथ से घटाएंगे, एंड बाय सेटिंग दिस फार्मूला वी विल गेट द ओवरलैप परसेंटेज. ठीक है? नाउ Yes. हेलो, नाउ Yes, sir. the important step after completion of double seam. डबल सीम में क्या होता है, हमारा सीमिंग, एयर टाइट सील हमारा फॉर्म हो जाता है और हर्मेटिक सील जो है हमारा फॉर्म हो जाता है. Because this double seaming having a 3 important equipment involved in double seaming operation, base plate, chuck, and 2 seaming roll will be there. ये जो चक है और सीमिंग रोल है वो इतने फास्ट से रोटेट करता है, जिसके साथ साथ हमारा कैन बॉडी अलोंग विथ कैन लीड वो भी रोटेट करता है. सो कैन के अंदर में हमारा फील्ड मटेरियल है. क्या होता है, समटाइम्स वो इतने जोर से वो रोटेट करता है, घूमता है, तो घूमने की वजह से उसके अंदर का जो फिलिंग मटेरियल है वो क्या होता है, वो हमारा स्पिल्ड हो जाता है. Sometimes it may occur because of the faulty operation,
इट में अकर। तो वो जो हमारा स्पिलिंग होगा, वो स्पिल्ड मटेरियल हमारा कैन के चारों तरफ जाकर के लग जाता है। Sometimes you will also get the pieces of broken pieces of fish meat, which will be adhere to the can body. तो इस स्टेप कैन वॉशिंग also play a important step। जो मछली का छोटा टुकड़ा कैन के बॉडी पे जाकर के चिपक गया, या ऑयल है वो जाकर के चिपक गया, if we are not cleaning or if we are not removing by a washing method, then there is a chances it may leads to contamination। क्योंकि वही कैन, सील्ड कैन को हम अब रिटॉर्ट में फिलिंग करेंगे, रिटॉर्ट में डालेंगे, so then there will be contamination because it form a source of contamination। ये हमारे रिटॉर्ट के अंदर में चला जाएगा और वहां पे जाकर के बैक्टीरिया क्या होगा, ग्रो करना स्टार्ट होगा, क्योंकि this is a rich source of protein and nutrient, so the bacteria will act on that, they will degrade and they will grow and multiply। So that's why we have to remove all these broken pieces from the spilled can। और ऑयल मटेरियल है तो उसको हमें वॉश करना। अगर हम इसको हटाएंगे। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 Yes, sir. Yes, सुन sir. सुन रहे हो? Yes, sir. आ रही है सर आवाज। हाँ, अगर हम इस चीज को ब्रोकन पीसेस है या ऑयल मटेरियल्स है उसको अगर हम नहीं हटाते हैं और डायरेक्टली अगर हम रिटॉर्ट में डाल देंगे और हम रिटॉर्टिंग करेंगे और आफ्टर रिटॉर्टिंग जब उस तरह के कैन को निकालेंगे और जो पीसेज एज सच हमारा कैन के साथ था, एडहेयर था, चिपका हुआ था, वो क्या होगा, बिकॉज इन रिटॉर्टिंग वी आर अप्लाइंग ए सच ए हाई टेम्परेचर, so these broken pieces of fish will be stick on the can body और वो इस तरह से चिपक जाएगा, इतना हार्ड उसमें चिपक जाएगा कैन के साथ। अगर हम उस पीसेस को हटाएंगे तो कैन बॉडी के ऊपर में जो हमारा ये फिश मछली था उसको अगर हटाएंगे तो कैन के ऊपर में एक हमारा कोट होता है, कैन के बॉडी के ऊपर में हमारा एक कोट होता है जिसको लैकर बोलते हैं, उस लैकर को भी वो उठा करके लेके आ जाएगा। तो अगर लैकर भी हमारा कैन बॉडी से हट गया, सो देयर विल बी ए आयरन स्टील बिकॉज इट इज ए मेटल प्लेट। कैन इज ए मेटल प्लेट, टिन है ना, टिन भी हमारा एक्सपोज हो जाएगा, आयरन हमारा एक्सपोज हो जाएगा, किसमें, एटमॉस्फेयर में। देन देयर विल बी चांसेस ऑफ corrosion because you have removed the lacquer। So if the lacquer we are removing from the can, then there is a chances that corrosion may occur। So that's why can washing after double seaming is most important। We must have to perform to prevent the contamination, to prevent the corrosion। So what we are doing, we are washing the sealed can, where we are washing in a hot detergent solution। This hot detergent solution contains 1.5% of sodium phosphate and the temperature here we are applying is a 80 degrees C। Then what we are doing, we are rinsed with a, means after washing we have to do rinsing। Why rinsing is required? Because this hot detergent solution contains alkali, because sodium phosphate now, phosphate will be alkaline in nature। So alkaline residue, if it is there in the detergent solution, if any residue will be there in the on the means can, then again there will be a removal of lacquer। lacquer क्या होगा हमारा, रिमूव हो जाएगा।
तो रिमूव होगा तो अगेन क्या होगा, टीन हमारा एक्सपोज हो जाएगा, आयरन हमारा एक्सपोज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो कोरोशन हमारा अकर हो जाएगा. So again, that's why after washing we have to do rinsing with a hot water. Understood? Yes, sir. Yes, sir. तो आज के लिए हम यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. इसके बाद का जो स्टेप है थर्मल प्रोसेसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी आर following in canning operation, and here we have to discuss a lot. Then only you will know what is the advantage and what why this step is most important, thermal processing or sterilization. अब हम यहाँ पे क्लोज करते हैं आज का सेशन, और नेक्स्ट क्लास में Yes, हम sir. थर्मल प्रोसेसिंग और स्टेरिलाइजेशन को कवर करेंगे. If anyone is having a confusion or doubt, you are you are free to ask. You may ask, please. अफसर कुछ बोलना चाह रहा है? No, sir. Anyone? No, sir. Okay then. अच्छे Yes, से sir. रहो घर पे, स्टे हेल्दी, हैप्पी रहो घर पे. नेक्स्ट क्लास हम फिर कवर करेंगे थर्मल प्रोसेसिंग. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मीटिंग खत्म किया जाए. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. Yes, sir. Okay.